ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर बिनाश। हर कृपा ते संत पेटिया, नानक मन परगास। याहि कुल ते प्रगट होय, ताहि कुल को नाम। पुन द्वादश गोरिंड को, मेरी है प्रणाम। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति, मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवद् व्याप्त देहाय, दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलं दिशतु मे विनायको, मंगलं दिशतु मे सरस्वती, मंगलं दिशतु मे महेश्वरी, मंगलं दिशतु मे सदाशिव। परम सत्कारयोग उपस्थित हाजरीन साध संगत जीओ, सब तो पहला महान सतगुरां नूं याद करिए, सब प्रेम सत्कार नाल आखिए धन श्री सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी। एक बार फेर अंत न सिफती कहन न अंत दे वाक अनुसार, सब प्रेम सत्कार नाल आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी। हाजरा हजूर सतगुरां दे चरनां च अपनी शरदा प्रीत ते प्रतीत नूं समर्पित करदे होए, सब प्रेम सत्कार नाल आखिए धन श्री सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह जी। धनता योग जन्म है, जो सिमरन करन दा उपरंत गुरबाणी शास्त्र इतिहास दियां विचारां सुनन ते करन दा ये सुभाग समा सानू प्राप्त होया साध संगत च। जिस महान जप प्रयोग दा आनंद आप लै रहे हो, इस जप प्रयोग दे बानी
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਸ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਏ ਸਟੋਰੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣੀਏ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜੋ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੋ ਸਵਰੂਪ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਨਿਰਗੁਣ ਸਵਰੂਪ, ਇੱਕ ਹੈ ਸਰਗੁਣ ਸਵਰੂਪ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਅਸਤਿਤਵ, ਜਿਹਦੀ ਸੱਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਜਗਤ ਦੇ ਜਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਰਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪत्ति ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਬਨਸਪਤੀ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰੰਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੱਧ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਏ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਤਰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਗੁਣ ਸਵਰੂਪ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਲ ਦਾ ਅਸਤਿਤਵ ਹੈ। ਜਲ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹੀ ਜਲ ਜਦੋਂ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਘਟਨ ਕਰਕੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ
ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਈਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਸੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਜਲ ਦਾ ਸਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਤੱਤਵ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਗ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਗ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅੱਗ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਜਲੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰਿय ਹੈ, ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਉਹੀ ਨਿਰਗੁਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਦੇ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ, ਸਰਗੁਣ ਪੀ ਉਹੀ, ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ। ਉਹੀ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰਾਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੱਕਰ ਚਹਿਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜੇ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਪੇਖ ਕਹਿ ਸਕਤ ਨਾ। ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਿਹਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰਾਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਕਿਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵੀਦਾ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1890 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 1872 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਛਾਉਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 11 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਦੌਰੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਦੌਰੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਨਾਲ
प्रफुल्लित भी करते ने पए साध संगत च। पर 1906 दे विच सतगुरां ने अपनी रजा दे अनुसार अपनी इस देह नूं संकोचदियां होयां ज्योति जोत समा गए। श्री सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह इस तखत दे उत्ते सुभाएमान होए साध संगत च। केवल 16-17 साल दी आयु है और बहुत वड्डी जिम्मेवारी है साध संगत च। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह कुछ उदास रहिंदे ने। एक दिन माता जीवन कौर जी ने कोल बुला के पूछया, प्रताप सिंह जी बड़े उदास रहिंदे हो, की गल है? सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ने आख्या, माता जी जिम्मेवारी बहुत वड्डी है। कुछ उम्र दे विच लोग मेरे तो वड्डे ने, मैं उन्हां नूं किस तरह हुक्म ते आदेश दियां, तुसी आ काम करो ते आ ना करो। इस करके मन कुछ उदास उदास रहिंदा है। और दूसरा उदासी दा कारण यह है, भैणी साहब दे विच आवाजाई बहुत है, साध संगत बड़ी आउंदी है, कम्मां दे रुझेवें बड़े ने, जिहदे करके सिमरन नहीं हो पाउंदा साध संगत च। पहली चीज इतिहास तो की शिक्षा मिलती है, मैं थोड़ी थोड़ी गल आप दे नाल करनी है क्योंकि कथा आपने बहुत बार सुनी है। पहला मैसेज सतगुरां ने, क्यों अजो अपि सन्न भय आत्मा भूता नाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्य आत्म माया। भगवान श्री कृष्ण कहते ने, अर्जुन संसार च मेरा कोई प्रयोजन नहीं। सतगुरु दे अवतार दे विच ते मनुख दे अवतार दे विच फर्क की है? जदों उस परमात्मा नूं भी जन्म लैना पैंदा, किसे ना किसे माता पिता नूं चुनना पैंदा। आम मनुख दा जन्म भी किसे मां दे गर्भ चों हुंदा है। जिस तरह का शरीर आम मनुख दा, सतगुरु दा शरीर भी वेखण नूं उसे तरह का ही है। उही अखां ने, उसे तरह का ही कन्न ने, उसे तरह दी लत्तां बावां ने, पर फर्क की है? सिर्फ इको ही फर्क है और महान फर्क है। मनुख दा जो जन्म है वो अपने कीते हुए चंगे मंदे कर्मां दा फल भोगण दे वास्ते परमात्मा इनू इस संसार दे उत्ते भेजदा और मनुख जन्म लैन वास्ते सुख दुख दा फल भोगण दे वास्ते विवश है, मजबूर है, क्योंकि सजा मिलनी है हुण। पर सतगुरु जदों देह लैके आउंदे ने, वो अपनी मर्जी दे नाल आउंदे ने, किसी कर्म दा जां सुख दुख दा फल भोगण दे वास्ते नहीं आउंदे, लोकां दा भला करन दे वास्ते आउंदे ने, मर्यादा दी स्थापना करन दे वास्ते आउंदे ने, लोकां नूं परमात्मा दे नाल जोड़न दे वास्ते आउंदे ने। इन्ना ही फर्क है। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह मन दियां विचारां की ने? भैणी साहब बहुत रौला है, आवाजाई बहुत है, कंमकारां दा रुझेवां बहुत है, मन सिमरन नाल जुड़दा नहीं साध संगत च। पहली चीज है, अगर व्यक्ति दा मन शांत नहीं, व्यक्ति दा मन एकाग्र नहीं, सिमरन दा जो रस आना चाहिए, सिमरन दे नाल जो जीवन दे अंदर परिवर्तन आना चाहिए, सिमरन दे नाल जो मन परमात्मा च लीन होना चाहिए, बिना एकाग्रता तो वो संभव नहीं हो सकता साध संगत।
इस करके जिंदगी च ये प्रैक्टिस करनी चाहिदी है कि जिंदगी च कुछ ते ऐसा समय होवे जदों असी संसार दे सारे कम्मां नूं भुल के संसार दीयां सारियां चिंतावां नूं पिछे छड्ड के उस परमात्मा नाल पूर्ण एकाग्रता दे नाल जुड़ सकीए। साध संगत च शास्त्र कहंदा जिस तरह सप अपनी केंचुली उतार के निकल जांदा है, सारे दिन दे विच कोई एक ऐसा समा होवे जदों ये चिंता दा चोला, ये कम्मां कारां दा रुझेवा, ये तरह तरह दे मन दे अंदर जो फिक्र ते चिंतावां ने उन्हां नूं छड्ड के व्यक्ति 10 मिनट 15 मिनट जिन्नी भी सतगुरु बख्शिश करन इस सिमरन दे नाल जुड़िया जावे। और इहदा होर कोई भी शॉर्टकट रस्ता नहीं बिना प्रैक्टिस तो। साध संगत च सतगुरु दी बख्शिश ते अभ्यास, इस तो बिना ऐसा कोई भी तावीज नहीं, उस तो बिना ऐसा कोई भी आशीर्वाद नहीं कि तुहाडी अचानक लिव लग जावे। साध संगत च इहदे वास्ते मेहनत ते मशक्कत करनी पैंदी है। जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। जिन्हां ने मशक्कत काली है, अमृत वेले उठना की है मशक्कत है। सौन दे विच बड़ा आनंद आउंदा है। सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह दी उपदेश च आप सुनदे हो, अमृत वेले उठना शेर दा शिकार करन दे बराबर है। शेर दा शिकार करन दे बराबर। सौन च आनंद किन्नू नहीं आउंदा, सब नूं आउंदा, पर अमृत वेले उठना मशक्कत है। अपनी नींद दा त्याग करना, जिहड़ा कुछ त्याग करेगा उन्हें ही महान रस दी प्राप्ति होएगी। केसी इशनान करना और इहो जिहां कंट्रियां च रह के महान मशक्कत है, महान घालन है। साध संगत च और अपने जीवन दे रुझेवियां चों समय कढना महान मशक्कत है। ये करनी पैंदी है। जो नहीं करेगा परमात्मा दी बख्शिश नहीं होएगी, उस नाम दा रस नहीं मिलेगा, ये जन्म मरण दा चक्र नहीं टुटेगा। इस करके यतन कीता जावे, कुछ ऐसा समय दिन दे विच निकले सतगुरु बख्शिश करन अभ्यास दे नाल असी अपनियां चिंतावां नूं छड्ड के, अपने काम ते परिवार दे फिक्र नूं छड्ड के इस सिमरन दे नाल थोड़ी देर दे वास्ते जुड़ सकीए। और मैनूं इस तरह लगदा है ये जो जप प्रयोग दी विध महान आत्मा सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ने बनाई है, इहदे मूल दे विच उद्देश यही सी किसी ना किसी ढंग दे नाल लोग इस सिमरन दे नाल जुड़ जान। साध संगत च जुड़ जान। क्योंकि मैं थोड़ा जिहा आप नूं पिछोकड़ दे वल भी लैके जावां। तुसीं अरदास करदे हो सतगुरु प्रताप सिंह सिमरिए जिन कलयुग दे विच सोच सोध नाम बाणी दा प्रवाह दिता चलाए। इस नाम बाणी ते सोच सोध दे प्रवाह नूं चलाउण दी जो वडियाई, जो महानता सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह दे हिस्से च आई है, शायद पूर्व गुरुआं दे हिस्से च नहीं सी आई। कारण सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह दा जीवन पूर्ण संघर्षमई रहा है। लोकां नूं जगाउण दे वास्ते सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह दा जीवन व्यतीत होया, जिन्ना चिर देशन काल तो पहलां दा और लोकां नूं इकट्ठे करन दे विच ही लगे रहे। इस नाम बाणी नूं खुल रूप दे विच प्रचारित नहीं कर सके क्योंकि अंग्रेज हकूमत दा दबाव सी। सतगुरु हरि सिंह सच्चे पातशाह इस नाम बाणी दा खुल के प्रचार नहीं कर सके, अंग्रेज हकूमत दा दबाव सी। इत्थों तक सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह ने आख्या जेड़े कहंदे सन असी तुहाडे पिछे सरबंस ला देंगे, वो मेरे वास्ते हुण भजन बाणी पाठ करो।
और सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह ने हुक्मनामा भेजिया, सतगुरु हरि सिंह सच्चे पातशाह वास्ते साडे वास्ते घट्टो घट 5 अखंड पाठां दा भोग पाया जावे। और इतिहास दसदा किन्नियां सख्ताइयां दे नाल लुक लुक के 3-3 बंदियां ने इस अखंड पाठ दी लड़ी नूं पूर्ण कीता। साध संगत जी, कहन तो भाव इस नाम बाणी दा जो प्रचार ते प्रसार खुल रूप दे विच होया, वो सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ने बख्शिश कीती। 1925 तो बाद जदों श्री भैणी साहब तो ये पुलिस चौकी चुकी गई, दौरे करन दे विच सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह स्वतंत्र हो गए। इस नाम बाणी दा प्रवाह सतगुरां ने चला दिता। साध संगत जी, इस जप प्रयोग नूं शुरू करन दा मतलब भी यही सी। पहली चीज एकाग्रता दी साधना कीती जावे जिन्ना हो सके। आखिर सज्जनों, जदों गंभीरता दे नाल अपने जीवन दा विचार करिए ना, मनुख नूं ये बहुत वड्डी हौम है, मनुख नूं ये बहुत वड्डा वहम है कि करन वाला मैं हाँ। जिस दिन इहदे पिछे करन वाला व्यक्ति नूं परमात्मा दिखन लग जाए, अपने कम्मां दे पिछे परमात्मा सतगुरु नजर आउण लग जाए, इस मनुख दा अहंकार गिर जाएगा। साध संगत जी, एक श्वास नहीं असी लै सकदे अपनी मर्जी दे नाल, फिर जीवन नूं किस तरह चला सकदे हां। रसना जपती तू ही, मात गर्भ तुम ही प्रतिपालक, मृत मंडल एक तू ही, तुम पिता तुम ही फुन माता, तुम्हें मीत हित भ्राता, तुम परवार तुम्हें आधारा, तुम्हें प्राण दाता, तुम्हें खजाना तुम्हें जरीना, तुम ही मानिक लाला, नानक पार जात गुर ते पाए, तो नानक पए निहाला। गुरु पंचम पातशाह कहते ने मेरे मुख चों हुण तू ही निकलदा। कारण की है? हुण हर श्वास दे नाल उस परमात्मा दा शुकराना हो रहा है। जीवन दी हर चेष्टा उस परमात्मा दे वास्ते होण लग गई है। उहदा कारण की है? रसना जपती तू ही। पंचम पातशाह कहते मैनू समझ आ गई है, मात गर्भ तुम ही प्रतिपालक, मृत मंडल एक तू ही। ऐ परमात्मा मैनू समझ आ गई है इस गल दी, मेरी रक्षा जे तू कीती है, माता दे गर्भ दे विच भी तू कीती है। मां नू ते पता भी नहीं इस एडा वड्डा प्रोसैस जो अंदर चल रहा है। कोई डिवाइन माता मां दे गर्भ नू आश्रय करके एक बच्चे नू जन्म दे रही है। साध संगत जी, मां नू पता भी नहीं एडी महान ते जटिल संरचना कोई शक्ति मां दे गर्भ दे अंदर कर रही है। ये अंगां दा बनना, ये खून दा आउणा, ये नसां दा विकसित होना, मां ते बिल्कुल अज्ञात है। मां ने बिल्कुल उस शक्ति दे अगे अपने शरीर नू समर्पित कर दिता है और वो शक्ति अपनी मर्जी दे नाल काम करदी है। पैसा संगत जी, पंचम पातशाह कहते ने रसना जपती तू ही, परमात्मा मैनू समझ आ गई है, मात गर्भ दे विच भी मेरी रक्षा करने वाला तू है। मात गर्भ तुम ही प्रतिपालक, मृत मंडल एक तू ही। इस संसार दे विच अगर मैं जिया, ये मृत मंडल है, मौत दा संसार है, मौत दा तांडव हो रहा इस संसार दे अंदर। इथों भी अगर मैं थोड़ा जीवन जिउ लिया, तेरी बख्शिश दे नाल मैं छोटा जिहा जीवन जी पिया वां। एक फुल दा छोटा जिहा जीवन, उहदा खिलना, खुशबू दा बिखरना और मुरझा जाना, इस तरह इस समग्र संसार दे अंदर मेरा जीवन भी उस फुल दी तरह, व्यक्ति दा अस्तित्व भी की है। साध संगत जी, इस महान आसमान दे अंदर जदों तारियां नूं वेखीदा, एक छोटा जिहा तारा किसी कोने च जदों टिमटमाउंदा, एडे वड्डे ब्रह्मंड दे विच उहदी कोई औकात नहीं की। मनुख दा जीवन भी इसे तरह है, फुल दा आउणा, खिड़ना, मुरझा जाना, मृत मंडल एक तू ही।
परमात्मा जे थोड़ा जिहा जीवन मैं किते जिਉ सकिया ना, तेरी रक्षा दे नाल, तेरी किरपा दे नाल जिउया। तुम ही पिता तुम ही फुन माता, तुम ही मीत हित प्राता। मेरा मां भी तू है, मेरा पिता भी तू है, मेरे संबंधी भी तू है, मेरा खजाना भी तू है, मेरे तरह तरह के लाल मोती जिन्ना भी मेरा संसार दा वैभव है, वो तू ही है। मैनू इस गल दी समझ आ गई है, मेरे कोल जो भी कुछ है परमात्मा तेरी रहमत दे नाल है। मेरे जीवन दे विच जो कुछ भी हो रहा है परमात्मा तेरी मर्जी दे नाल हो रहा है। इस गल दी समझ आउण तो बाद रसना जपती तू ही। जिस दिन व्यक्ति नूं ये गल समझ आ जाएगी, एक श्वास भी बिना परमात्मा दे सिमरन तो नहीं गुजर सकता। साध संगत जी, अगर मैं इस गल नूं इस तरह भी कह दवां, जिन्ना चिर व्यक्ति अहम दे तरहातल ते जिउंदा है, मैं करदा, मैं करन वाला, मेरे कारण एक काम होया, उन्ना चिर तू परमात्मा याद नहीं आएगा। अपनी जिंदगी दे विच ये विचार करके वेखो, जदों भी असी अपने अहंकार नूं दबाया, उदों परमात्मा प्रबल होके साडे जीवन दे विच खिंड गया ते साडी रसना चो परमात्मा दी याद आई है। साध संगत जी, इस करके यतन कीता जावे। कामकार भी बहुत जरूरी ने। मैं ये नहीं कह रहा कामकार छड्ड दिओ, मेहनत करना छड्ड दिओ, बहुत जरूरी है, पर किते ना किते इस गल दा भी ध्यान रखिया जावे कि उस परमात्मा दा सिमरन ते उस परमात्मा दी शक्ति सारे संसार च काम करदी है। अज ये प्राणा दी डोरी टुट जाएगी, सारा बिजनेस सारा कुछ इत्थे ही रह जाना। जिस परिवार दे वास्ते करदे पए, वो परिवार नूं पालन वाली कोई शक्ति है। जिन्हां दे पेरेंट्स नहीं रहिंदे, वो बच्चे भी पल जांदे ने। साध संगत जी, परमात्मा ते विश्वास कीता जावे, उस व्यापक शक्ति का एहसास किया जावे ते यतन किया जावे, जिन्ना हो सके एकाग्रता पूर्वक उहदा सिमरन किया जावे। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह इस विचार दे नाल पंडित संत बसंत सिंह जी पधाणियां वालियां नूं अपने नाल लैके चले गए ने। कहंदे ने पंडित जी जंगलां च तप करन जाना है। पंडित संत बसंत सिंह जी कहंदे ने, पातशाहो मेरा शरीर बिरध है और जंगलां दे विच बड़ियां कठिनाइयां ने और सिमरन करना भी बहुत औखा है। मैं आप दे नाल जंगलां च तप करन वास्ते नहीं जा सकता। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह दी 17 साल दी आयु और पंडित संत बसंत सिंह जी लगभग 60-65 साल दे। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ने आख्या, पंडित जी उम्र दा तगाजा चाहे अपना बहुत फर्क वाला है, पर सिख ते सतगुरु दा जो संबंध है उहदे कारण मैं आप नूं हुक्म देना कि मेरे नाल तप करन दे वास्ते चलिया जावे, जिहदे कारण जीवन दे विच योग्यता प्राप्त कीती जावे। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह भैणी साहब तो चाले पा दिते ने। एक सिख ने जाके माता जीवन कौर जी नूं दस्सिया, सच्चे पातशाह तप करन दे वास्ते चले गए ने। माता जी ने आख्या सच्चे पातशाह नूं बुलाया जाए। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह अपनी माता जी का ये आदेश सुनदे सार श्री भैनी साहब वापस आ गए ने। माता जी ने पूछा, प्रताप सिंह कित्थे चलिया सैं? सारी मन की विथया दस दी। माता जी बहुत वड्डी गुरियाई की जिम्मेवारी आ गई है, उम्र छोटी है, भैनी साहब दे विच बड़ा रौला गौला है, योग्यता दा मेरे अंदर अभाव मैनू महसूस हो रहा है, इस करके मैं पहाड़ां दे विच तप करन दे वास्ते जा रहा। माता जीवन कौर जी ने आख्या, प्रताप सिंह अगे किते तप घट कीता ही,
जो गुरु राम सिंह सच्चे पातशाह दे तखत ते बैठा है, सतगुरु हरि सिंह सच्चे पातशाह दे गृह विखे अवतार लिया, ये किते घट तप दी निशानी है। और बहुत ही प्रेरणादायक शब्द सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ने वरते, माता जी मैं बासी नहीं खानी, मैं ताजी करके खानी है। शब्द बहुत छोटे ने पर जिंदगी दी सारी फिलॉसफी सामने रख देंदे ने। साध संगत जी, मैं बासी नहीं खानी, मैं ताजी करके खानी है। सजनों, अपनी जिंदगी का ये विचार करिए। महर्षि पतंजलि जी लिखते ने, अपने कीते हुए पूर्व जन्मां दे कर्मां दा जो फल है वो 3 रूप दे विच मिलदा है। पूर्व कर्माणि फलानि जात्यायुर्भोगा। सानू जो चंगा शरीर मिलिया, ऐसे ऐसे संसार च लोग ने जिहड़े अपाहज पैदा हुंदे ने, अंगहीन पैदा हुंदे ने। ऐसे ऐसे संसार च लोग ने जिन्हां नूं सारी जिंदगी रोटी कपड़ा मकान दे वास्ते मशक्कत करनी पैंदी है। सारी जिंदगी ना चंगा खाण नूं मिलदा, ना चंगा पहनण नूं मिलदा, ना चंगी थां रहण नूं मिलदी है। अगर परमात्मा ने तुहाडे कर्मां दे अनुसार चंगा खाण नूं दिता है, रहण नूं दिता है, पहनण नूं दिता है, ये पिछले जन्मां दा फल है। साध संगत जी, अगर इस जीवन दे विच सिमरन दी साधना नहीं कीती, अपने पूर्व जन्मां दी कमाई नूं खा के खत्म कर दिता, अगले जन्म दे विच की खाओगे? इस करके जो भी सानू सुख इस जीवन दे विच मिलदे ने, चाहे उहदा निमित्त किस तरह भी कोई भी बने, किते ना किते उहदे विच साडा प्रारब्ध है, साडे पूर्व जन्म दे कर्मां दे कीते हुए चंगे कर्मां दा फल है। इस करके यतन किया जावे, अपनी पिछली कमाई नूं खा के इस जन्म दे विच खत्म ना किया जावे। इस जन्म दे विच भी इन्ने को पुण्य इकट्ठे कर ले जान कि अगले जन्म दे विच भी सानू कुछ खान नूं मिल जाए। साध संगत जी, नहीं ते हुण तू होश कर जालमा, खोल अखी, आउण वाले ने एक दिन जम तेरे, छाथे ढेरी पैनी है जिंदगी तेरी, थोथे होए ने अंदरों थम तेरे, छेती छेती वे हाजल है नेकियां तू, अगा जिन्हां ने आउणा है कम तेरे, ठूहे वांगना जालमा बनी अन्ना, तेनू मिली है दात दो अखियां दी, शर्फ आखे रुतबा आदमी जिउण दाए, ना मरी मौत कीड़ियां मक्खियां दी। हजारां लोग मरदे ने जमदे ने, किते उन्हां दे विच ही साडी भी गिनती ना हो जावे, कीड़ियां दी तरह मक्खियां दी तरह। भाव सिमरन करके पुण्य करके जिंदगी च कुछ ऐसी संपत्ति नूं इकट्ठा कर लिया जावे। ये जिन्ना भी संसार दा धन है, इहदा संबंध सिर्फ श्वासां दे नाल है। जिस दिन ये श्वास टुट जाणगे, ये सारा धन पराया हो जाना। साध संगत जी, खिमा रखना। ये जिन्ने भी धीआं पुत्र संसार दे पति पत्नी सारे संबंध ने, इन्हां सारे संबंधां दा रिश्ता केवल इस श्वासां दी डोरी तक है। जिस दिन ये टुट गई, ये सारे संबंधी भी पराए हो जाने ने। साध संगत जी, पता नहीं किन्ने को संबंधी पिछे छड्ड आया और किन्ने को अगे छड्डने ने। ये सारी संपत्ति इत्थे ही रह जानी है, केवल और केवल परमात्मा दा नाम नाल जाना है। साध संगत जी, ऐसा धन इकट्ठा करो जिहड़ा लोक ते प्रलोक दोनां च नाल रवे। धनानी भूमौ पश्मश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारे जनस्मशाने,
देहिश्चितायम परलोक मार्गे धर्म नुगो गच्छति जीव एकहा। गुरबाणी क्यों बार बार कहती है सिमरन करो, शास्त्र क्यों बार बार कहता है सिमरन करो सिमरन करो। आखिर कारण की है? जिंदगी दियां कुछ ऐसियां सिचुएशंस ने जिथे केवल और केवल व्यक्ति का नाम सहायता कर सकता है, ना संसार दी कोई संपत्ति ना संसार दा कोई संबंध। खिमा रखना, मैं बहुत संक्षेप नाल गल करा। कोई बीमारी लग गई है, उस बीमारी दी जो पीड़ा है किसी पैसे दे नाल उन्हें वंडाया जा सकता है, किसी संबंधी दे नाल उन्हें वंडाया जा सकता है? नहीं, वो पीड़ा अपने शरीर ते सहनी पैंदी है। हाँ, पैसे नाल चंगे हॉस्पिटल चले जाओगे, संबंधी चारों पासे खड़े होके हाल पुछ सकते ने, पर उस बीमारी नूं अपने शरीर ते हंडाउणा पैंदा है। अगर सिमरन दा अंदर वास है, वो पीड़ व्यक्ति नूं स्पर्श भी नहीं करती। साध संगत जी, किन्ना भी दुख होवे, इस सिमरन दी नौका ते बैठ के व्यक्ति पार हो जाता। साध संगत जी, इस करके आख्या सिमरन करो। मौत दा महान दुख है जिहदे तो संसार दी कोई संपत्ति नहीं बचा सकती, संसार दा कोई संबंधी नहीं बचा सकता। मानस बपुरा मूसा कीनो बीच बिलैया खई रे, बारे बूढ़े तरुणे पईया सबहू जमलै जई है रे। बाबा कबीर जी कहते ने, ऐ भाई दुनिया दे लोको, मौत सारियां नूं आउणी है, जिंदगी दी अटल सच्चाई है, पर सिमरन करन वालियां नूं पता है किस तरह आएगी। बिल्ली है, उहदे दंद बड़े शार्प ने, जदों चूहे जां कबूतर नूं फड़दी है ना, उहनूं खूनो खून कर देंदी है, उहदी मौत लै आउंदी है, इन्नी दर्द होंदी है उन्होंने। पर उही बिल्ली जदों अपने बच्चे छोटे बलूंगड़े नूं फड़दी है ना, उन्होंने थोड़ी जी भी खरोच नहीं आउंदी। साध संगत जी, ये मौत रूपी बिल्ली ने जदों अपना ग्रास बनाया ना, सानू जिहड़े सिमरन करन वाले ने उन्हां नूं इस तरह लजाएगी जिस तरह बिल्ली अपने बलूंगड़े नूं लैके जांदी है, और दूसरिਆਂ ਨੂੰ इस तरह ले जाएगी जिस तरह बिल्ली चूहे ਨੂੰ फड़ती है। इस करके जिंदगी ते होर भी बहुत विचार किया जावे। बार बार जो आख्या जाता है सिमरन करो, उसका कारण की है? जिंदगी दियां कुछ ऐसियां सिचुएशंस ने जिथे संसार दे विच केवल और केवल परमात्मा का नाम ही व्यक्ति का आधार बनता है, नाम ही व्यक्ति नूं धीरज देंदा है, नाम ही व्यक्ति नूं दुख नूं भुला के सुख का एहसास कराउंदा है। दुनिया की होर कोई भी चीज नहीं करा सकती। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ने आख्या, माता जी मैं बासी नहीं खानी, मैं ताजी करके खानी है। माता जी ने आख्या, पातशाहो साध संगत दूरों नेड़ियों आप दे दर्शन करन आउंदी है, कोई इस तरह की विध बनाई जावे कि संगत भी दर्शन करन आवे ते निराश ना जावे, क्योंकि सतगुरु दा मुख वेख के सिख दा हिरदे खिड़ जांदा। साध संगत जी, इतिहास दसदा है जदों गुरु अंगद देव पातशाह अपने सवेर दा सिमरन करके बाहर आउंदे सन ते रोगी बाहर खड़े जदों सतगुरां दा पहला ही दर्शन करते सन, उन्हां दे रोग दूर हो जाते सन। साध संगत जी, सिर्फ दर्शन करन मात्र दे नाल सतगुरु दे दर्शनां दी एक कशिश है। साध संगत, पर सिख दा हिरदे होवे दर्शन करन वाला, फिर सतगुरां दे अंदर ओ जलाल व्यक्ति नूं दिखेगा जो हिरदे दियां सारियां परिच्छिन्नतावां नूं तोड़ देगा। साध संगत जी, माता जी ने आख्या, पातशाह कोई इस तरह की विध बनाओ तुहाडा सिमरन भी हो जावे, सिखां नूं दर्शन भी नसीब हो जावे। साध संगत जी, बिन गुर दीखिया कैसो ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान, बिन कथनी सर्ब बिन पै कथनी सर्ब विकार, कहो नानक दर का विचार। सिख दे वास्ते सतगुरु दा आधार है,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਭੈ ਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਕੈਸੋ ਗਿਆਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਪੇਖੇ ਕੋ ਕੈਸੋ ਧਿਆਨ। ਜਿਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਾਕਾਰਵਾਦੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਬਿਨ ਪੇਖੇ ਕੋ ਕੈਸੋ ਧਿਆਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵਸਾ ਕੇ ਇਸ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਨ ਪੇਖੇ ਕੋ ਕੈਸੋ ਧਿਆਨ। ਬਿਨ ਭੈ ਕਥਨੀ ਸਰਬ ਵਿਕਾਰ। ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਬੜੀ ਸੁੱਚ ਸੋਧ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਹੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਇੱਕ ਡਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਨਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਡਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਆਪ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟਿਡ ਪਰਸਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਪੁਰਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਸਪੈਕਟਿਡ ਪਰਸਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਝੁਕ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਡਰ ਹੈ ਰਿਸਪੈਕਟਿਡ ਪਰਸਨ ਦਾ। ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਉਨਾ ਚਿਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਵੱਜੇ, ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਆਵੇ, ਉਦੋਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਮਨ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਰਮਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 2 ਰੂਪ ਨੇ। ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਦੇਹ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ, ਕੰਨਾਂ ਵਾਲਾ, ਲੱਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਤ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਚਰਣ ਕਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਪ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਂਸ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਨ ਭੈ ਕਥਨੀ ਸਰਬ ਵਿਕਾਰ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਾਤਰ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬੜਾ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦੂਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ,
पर जदों पाप करदे आ उदों भुल जाने आ कि सतगुरु वेखदा पिया है। इस जिंदगी दे कॉन्फ्लिक्ट नूं खत्म करके अपने विश्वास नूं दृढ़ कीता जावे कि सतगुरु परम व्यापक है, वो मैनू हर जगह देखता पिया है। बिन भै कथनी सर्ब विकार। अगर परमात्मा दे भै थले जीवन नहीं आया सजनों, गुरसिख दी साधना कदे पूर्ण नहीं हो सकती। सर्ब कथनी विकार, पातशाह कहते ने सारी कहनी कथनी जिहड़ी है उहदी बेकार हो जाएगी, साध संगत च बेकार हो जाएगी। उदाहरण देने का समय नहीं मेरे कोल। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ने माता जी की इस बेनती नूं प्रवान करदियां होया 1907 दे विच पहला जप प्रयोग नीलो दी नहर ते 40 दिन दा पूर्ण मर्यादा दे अनुसार कीता और सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह दे घरों पूजनिक माता भुपिंदर कौर जी ने जो बख्शिश की 1919 दे विच श्री भैणी साहब सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह दे चरणों च बेनती की, सच्चे पातशाह ये नामधारी इतिहास हमेशा इस्त्रियां ते परोपकार करदा रहा है। चाहे अमृत की दात होवे, चाहे सती प्रथा नूं बंद करन दी गल होवे, चाहे इस्त्रियां नूं शिक्षा देण दी गल होवे, चाहे बाल विवाह करन दी रोकण दी गल होवे, चाहे पुनर्विआह दी गल होवे, ये सारा नारा बुलंद करन वाले सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह दे आप वारस हो। किरपा करो इस जप प्रयोग दी मर्यादा दे विच बीबियां नूं भी शामिल होने का हुक्म दिओ। माता भुपिंदर कौर जी की यह बेनती सुन के सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह महान प्रसन्न होए ते आग्ञा दिती कि बीबियां भी पूर्ण मर्यादा का ध्यान रखदियां होइयां सुचता पवित्रता दे नाल इस जप प्रयोग च शामिल हो सकदियां। पहला जप प्रयोग माता भुपिंदर कौर जी ने उसे ही नीलो दी नहर ते अपनी एक कखां दी कुल्ली जी बना के अपनी एक सेविका दे नाल पहला जप प्रयोग आरंभ किया। उस दिन तो बीबियां भी इस जप प्रयोग का हिस्सा बन गईयां। साध संगत जी इस जप प्रयोग दे मूल दे विच इक्को ही गल है, व्यक्ति उस परमात्मा नाल जुड़े, उस परमात्मा का सिमरन करे, क्योंकि सिमरन जो खुशी इस जीव नूं दे सकदा संसार दी होर कोई भी चीज़ नहीं दे सकती। साध संगत जी इस करके सारी गुरबाणी सारे शास्त्र बार बार एक कोई गल कहिंदे ने, उस परमात्मा का सिमरन करो। और इस जप प्रयोग का तात्पर्य भी यही है। साध संगत जी इन्हां शब्दां दे नाल सतगुरु प्रताप सिंह का जीवन बहुत विशाल है, पर समय नूं ध्यान च रखदियां होइयां दास इत्थे ही संकोच करदा है। अखीर दे विच दास नूं इत्थे आया लगभग 4 महीने तो थोड़े दिन उत्ते ही हो गए ने। सतगुरां दी बख्शिश दे नाल आप साध संगत दा दर्शन करन दा मौका मिलिया। सब तो पहला दास सतगुरां दा बहुत बहुत ऋणी है। आप साध संगत दे दर्शन करवाए। उस तो बाद दास बहुत ही तय दिलों और बहुत ही सत्कार ते सन्मानयोग शख्सियत, और मैं इस गल नूं बड़ी ईमानदारी दे नाल कहना कि जिन्हां दे विचार सूझवानता ते जीवन तो मैं भी बहुत प्रभावित हाँ। बहुत ही सत्कारयोग प्रधान सुलखन सिंह जी दास उन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद करदा है हर प्रकार के सहयोग लई। सूबा मनजीत सिंह जी दा, साडे सामने भैन जी साडे रजी भैन जी बैठे, मैनूं पूरा नाम उन्हां दा नहीं पता, पर उन्होंने भी बहुत प्यार दिता, बहुत सेवा की सतगुरां दा सिख जान के। ते सरदार गुरभेज सिंह दे घरों बीबी जी
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਥਕਾਵਟ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਮਨ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭਾਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦਾਸ ਦੀ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੇਖੇ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਦਾਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਜੋ ਬਲਬੁੱਧੀ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਸੰਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਆਪ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਬੱਬ ਬਣਾਇਆ, ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।